So hello everyone. Today we will be creating a new project that is creating my gallery. So you need to notice few things before starting this project. Whenever I hover any of the image, they get popped out. They get popped out, right? They get popped out, right? The first thing. The second thing, the filter gets dropped, right? The second thing. And third thing is that you can see this black when I hover over this box, I get a box shadow, right? You can see the black question coming, right? So you got three things that when I hover over each image, their scale. So basically, this popping out is nothing that we are just increasing the scale, right? The second is thing is that there is a transition of few seconds. It can be less than 1 second or greater than 1 second, depending on you how you want to begin. And the third thing that I said you that we will be getting a box shadow, right? You can see this box shadow, right? These are three things that I said to you. But let me write it. So, so the first thing I said you will getting a popping out, popping out. That's nothing that is scaling, right? The second thing I said you is getting a tran, transition. It can be either uh, less than 1 second transition, right? The third thing that I said you that is getting a box shadow, right? Box shadow is of gray, so you need to remember its pattern, like how we could get the gray pattern box shadow. So for gray pattern, it's either hashtag 333 hexadecimal, right? The other thing that I said to you, and the fourth thing is that dropping uh, dropping its filter. So dropping filter. So initially it was zero filter. Initially it contained filter gray, that is 100%, right? After scrolling, we get filter 0%, right? So you remember this things, right? These are four, five things that I said to you. And what other things that my gallery is at center. So H1, let's say H1. So how we can substitute H1 at center? So there's a property called text align. So basically using text align, we could put my gallery at center, right? And one more thing that you can see there is a space between all of the image, right? So spacing, spacing all around. So when we need space at every point, as you can see, the image at like we need spacing at all point, right? So one thing we will notice that image at left is equal to image at right, means इस image के left में जितना distance है margin का उतना ही right वाली image से उसके end point तक के distance है same. So they the distance, let's say x, and this y is x equal to y. So you need to put margin also. मार्जिन मार्जिन की वैल्यू भी सेम रखनी होगी. सो फॉर सब्जेक्टिव मार्जिन ऑल अराउंड वी यूज मार्जिन ऑटो. सारी जगह मार्जिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट? आई थिंक वी आर डन. लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फाइल. सो sorry, so let me create a new file that is youtube cross.html. Let me save it. So we'll create it. We'll use our template and we'll link our CSS file. CSS file name is YouTube way, right? And let's start. So there is a good practice of creating a bigger wrapper. Whenever you make a project, so always create a wrapper class. So created a wrapper class.
right? Wrapper class is that my whole starting from here. I will just show you what is my wrapper class. So my wrapper class is this red, right? So my wrapper class is this whole boundary, right? This whole boundary. So first I will get my wrapper class, right? And inside wrapper class, I will again create my one more container. This will be my container, right? This will be my container. Inside container, I have my h1 tag, and again we will create a container that is called gallery. So this is a good practice to always create a wrapper and a container class before starting any project, right? So, sorry. Uh, so So now I've created my wrapper class. Inside wrapper class, I need to create my container box, right? And inside my container box, as you can see, we have got a my gallery here, right? So uh, now we'll get h1, right? In h1, what I will execute my gallery, right? Now you notice few more things that when I hover over each image, this image like a text get appear. So how we can move on this, like how we can get this portion. So there is a called fig caption, figure and fig caption. So I will use figure, right? And in my figure I will use fig caption. Fig caption इमेज के ऊपर अगर हमें कुछ टेक्स्ट अपीयर कराना है तो विल यूज फिग कैप्शन, राइट? I will just name it image, right? And we have got few images, image one, image two, image three. So let me create our image. We will use img tag. In img, I will put the source that is f1, right? So f1, right? And since they are nine image, you can see one, two, three, four, five, six, and 789, right? So we need nine such figure. So uh, uh, so uh, so what I'll do, I'll create a class and name it as card, right? One thing I forgot it, I need to create another div class before this. Why? I'll just show you. Wait, relax. Now I'll create my another gallery. I will show you why. I will tell you why I did this, right, in later part of the video. So I need this figure eight more time since we got nine images. So I will do copy it, Control C and Control V. Two time, three time, four time, five time, six time, seven time, eight time, nine time. Right. So now I'll just change the name F1 to F2, right? F2 to F3, F3 to F4, F5, F6, F7, F8, and my F9. So let's see how it looks. So this is my gallery, and these are all of the images that I've used in image tag. So one thing you can notice that we can't scroll left to right in our main project, right? So you can't scroll here, right? But as you can see, we need to scroll here, like हमें ये remove करना है scroll left में, right? So how we can do? So before scroll like पहले ये ओवरफ्लो हटाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले मार्जिन सेट कर लेंगे, मार्जिन है जीरो, पैडिंग भी जीरो, ये किसी कर रहा हूँ, यूनिवर्सल बॉक्स, यूनिवर्सल टैग है ये, ठीक है? अ, अब और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, राइट? अब हमें वो ओवरफ्लो हटाना है, ओवरफ्लो मतलब स्क्रॉलिंग हटानी है लेफ्ट टू राइट में. सो रैपर, रैपर इज जस्ट माई होल बॉक्स, राइट? द रैपर क्लास माई होल बॉक्स. ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये किसके अंदर आ रहा है, ये रैपर के अंदर आएगा, ठीक है?
to right. So what I will do overflow x as hidden, right? And overflow since हमें स्क्रॉल करना है ऊपर से नीचे तो और उसको ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, राइट। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कैसे बना अभी। Now you can see we can't scroll left to right, only we can scroll top to bottom, right? But you can see there is a little lag whenever you scroll. So for that, I will use scroll behavior smooth, scroll behavior smooth. So it will just lag नहीं आएगा। बेसिकली किसी किसी विंडो ब्राउजर में लैग आ जाता है। सो यू इफ यू यूज स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ so you won't get any lag, right? And you need to set the image like जो पूरा बॉक्स है वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा। तो वी कैन डू इट 100 व्यू पॉइंट, राइट, सॉरी 100 व्यू पॉइंट, राइट, right. So after wrapper we got our container. So let me see, wait, control C, windows. So as you can see, uh, right, so this was my whole wrapper, ठीक है। उसके अंदर एक और था गैलरी, वो कंटेनर, सॉरी कंटेनर। सो ये था कंटेनर, फिर इमेज था, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स था गैलरी का। शो यू। सो माय फर्स्ट बॉक्स वाज रैपर, राइट। पहला रैपर आएगा, उसके बाद आएगा कंटेनर, फिर हमारा माई गैलरी, फिर एक और बॉक्स आएगा, उसके अंदर सारी इमेज रहेंगी, राइट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ठीक है। अब इसके बाद आएगा मेरा कंटेनर, राइट, डॉट कंटेनर, ठीक है। अब हमें कंटेनर की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। सो कंटेनर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती है। पहली बात है कंटेनर, जो हमारा कंटेनर कौन सा होगा मैं दिखाता हूँ। तो पहले कंटेनर की हाइट सेट करनी पड़ेगी। हाइट तो 100% कर सकते हैं, ठीक है, 100%। कंटेनर का कुछ विथ भी होगा। सो मैक्स विथ 1200 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और इसकी मार्जिन कर देते हैं 0, ऑटो। वाई डेट 0, ऑटो की दिखाता हूँ। जैसे मार्जिन जो वाला बॉक्स था हमारा, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स था मार्जिन, शो यू, ठीक है। इसको दिख नहीं रहा, इसको भी हटा देता हूँ, वेट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बॉक्स था। आई शो लेटर, राइट। तो मार्जिन और को मैंने कर दिया कि वो बीच में आ जाए, ठीक है। और मार्जिन कर दिया। अब इसकी पैडिंग भी कर देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, राइट। इसी हाउ, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हमारा है रैपर, ठीक है। जो ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो रैपर है। और जो ब्लू वाली भी जो बॉक्स दिख रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है ऊपर ऊपर से, वो हमारा कंटेनर है, ठीक है। मैंने मार्जिन ये मार्जिन 0, ऑटो इसलिए सेट किया कि वो जो बॉक्स है वो हमारे सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसके डिस्टेंस देखेंगे इस बॉक्स की, जो ब्लू वाला बॉक्स है ग्रीन से, तो सेम है, इधर भी सेम है। लेट्स से कितनी पिक्सल है, 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल है, ठीक है। तो पैडिंग इसकी तो सेम है, मतलब पैडिंग मतलब इस बॉक्स से डिस्टेंस 20 पिक्सल है, ठीक है। इधर भी 20 पिक्सल है, इधर 20 पिक्सल, इधर 20 पिक्सल, मतलब ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब कंटेनर के बाद क्या आता है, कंटेनर के बाद माई गैलरी आता था, ठीक है। सो व्हाट आई विल मेक चेंजेस इन माई इन H1 टैग, H1। अब जो माई गैलरी है वो इधर साइड में है, बट हमारे मेन प्रोजेक्ट में जो माई गैलरी था वो सेंटर में था। तो इसको कैसे कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाने की क्या क्या कर सकते हैं। तो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट। और इसका तो फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं,
तो फॉन्ट, सॉरी, फॉन्ट साइज 3 rem, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ मार्जिन भी सेट कर देते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल कर देते हैं, 0। ठीक है, ऊपर से 20 पिक्सल होगा, बाकी सब कुछ नहीं है। और थोड़ा नीचे से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन, मार्जिन बॉटम, इसको क्या कर सकते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 पिक्सल हो जाएगा। अब हमारा देख, पहला हमारा रैपर था, फिर कंटेनर था, फिर माई गैलरी था, फिर एक गैलरी। गैलरी कौन सी थी मैं दिखाता हूँ। गैलरी में किसको बोल रहा था, गैलरी ये वाला पोर्शन है। माई गैलरी हो गया ना, ये वाला है मेरा गैलरी। दिस माई गैलरी क्लास दैट आई क्रिएटेड। सो अब इस पे चेंजेस करने हैं हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, डॉट गैलरी। ठीक है, अब गैलरी में हमें आइटम्स डालनी है, राइट। आइटम्स डालनी है, तो आइटम को अगर हम स्मूथ वे में डाल सके, मतलब उनकी पोजीशन में सेट कर सके, तो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्प्ले फ्लेक्स। तो विल यूज डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जैसे फ्लेक्स में सिंस आइटम ऐसे ऑर्डर में आ रही है 1 2 3, जैसे आइटम इस प्रोजेक्ट में 1 2 3 फॉलोड बाई 4 5 6, तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, फ्लेक्स रैप, रैप। ठीक है, और हमें एज ए सेड यू, देयर इज अ स्पेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज, राइट। द स्पेस बिटवीन दिस, तो देयर स्पेस बिटवीन ऑल द इमेज। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, राइट। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो हमारा गैलरी हो गया, कंटेनर हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है ये फिगर वाला, जिसपे इमेज थी हमारी। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं, डॉट कार्ड। ठीक है, अब हमें, अब हमारा जो कार्ड पोर्शन है, कार्ड पोर्शन कुछ नहीं है, इमेज वाला पोर्शन है। अब जैसे जो मेरा, एक मिनट, ठीक है, तो जैसे ये मेरी एक बॉक्स था। ठीक है, इस पे 3 इमेजेस हैं। तो एक बॉक्स सपोज अगर 100 का है, तो उसको तीनों डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाई 3 करेंगे, राइट। सो अगर ईच बॉक्स को अगर मैं प्लेस करना है, तो उसकी विथ मेरे को सेट करनी पड़ेगी। तो विथ कितनी, मैं अप्रॉक्स 31 या 32% दे सकता हूँ। ठीक है, 32% से, एज यू सॉ, 32% से 3 इमेज इधर आ जाएंगी, फिर नीचे 3, फिर नीचे 3, फिर 32%, राइट। ठीक है, 3 इमेज ऊपर, 3 इमेज नीचे, 3 इमेज फिर उसके और नीचे। ठीक है, मैंने इसकी विथ सेट कर दी। और क्या मैं यूज कर सकता हूँ इसमें, इसमें एक है ओवरफ्लो। हमें तो एक ओवरफ्लो का ध्यान देना है, तो उस पर ओवरफ्लो भी हम हिडन कर सकते हैं। ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन। अब इसकी एक देख, 3 इमेज आ गई, 1 2 3, राइट। ठीक है, अब हम इन्हें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करनी है। ठीक है, सो इसके हम क्या कर सकते हैं, इसका इसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, सॉरी, मार्जिन अभी रहने देते हैं। इनके पहले हम, तो हमें कार्ड में और प्रॉपर्टीज डालनी थी। तो लेट्स सी आवर कार्ड। तो कार्ड की, ये जो हमारा कार्ड था पूरा पोर्शन, तो इसमें और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती थी। इसका एक था जो बॉर्डर, जो रेडियस है वो थोड़ा कर्वी है इधर, देख रहे हो ना, पूरे शार्प एज नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। तो वी कैन चेंज दैट, बॉर्डर रेडियस इसको कर सकते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, और मैंने जैसे बोला था, जब इसे होवर करेंगे, तो इमेज ऊपर आएगा, इमेज ऊपर आएगा। और ये सर इमेज, ये जो फिक कैप्शन है वो ऊपर आएगा, इमेज उसके नीचे रहेगी। सो इमेज इज जस्ट रिलेटिव of fic caption. Image is relative of fic caption. Image is relative of fic caption. Right.
सो इमेज के अंदर प्रॉपर्टी डाल सकते हैं क्या, रिलेटिव, ठीक है, एक की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, एंड वी कैन सेट इट्स मार्जिन एज, सॉरी, मार्जिन एज 20 पिक्सल, ठीक है, सो 20 पिक्सल 0, राइट। सो ये हमारा कार्ड हो गया। अब कार्ड के अंदर क्या आता था, कार्ड के अंदर इमेज आता था। अब इमेज एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट कार्ड इमेज, ठीक है, डॉट कार्ड इमेज। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका जो फिल्टर था उसको ड्रॉप कर देंगे, तो इसका क्या करेंगे, फिल्टर ग्रे स्केल, एज ए सेट ग्रे स्केल, ग्रे को एक्सेस करने के लिए क्या यूज कर सकते थे, हैशटैग 333, सो 0,0, 10 pixel on hashtag 333, right? So they all will be, uh, wait, sorry, ग्रे स्केल पहले हम, सॉरी, ग्रे स्केल को पहले हम 100% कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले पूरा ग्रे स्केल हो जाएगा, बाद में हम प्रॉपर्टी की सेट सेट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, अ, देख सकते हैं ये जो पूरा बॉक्स है पूरा नीचे चले जा रहा है, तो अगर हमें बॉक्स की लेंथ को कंजर्व करने की उतने में रहे, तो विल यूज ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, एक तो ये हो गया, इससे थोड़ी कंजर्व हो जाएगी इमेज, अपने बॉक्स में ही रहेगी। और इनके हम हाइट सेट कर सकते हैं, हाइट एज 100% एंड विथ भी 100%, सो हाइट मैंने सेट कर दी और विथ भी 100% सेट कर दी। सो देख सकते हैं इनकी लेंथ उतनी ही है, वन, जो जितनी लेंथ की इमेज थी उतनी का वो बॉक्स हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ छोटी थी, ये वाले की, तो इसका बॉक्स छोटा ही रहा, और यू कैन मैनेज दिस, नॉट अ बिग थिंग। वी आर नॉट गेटिंग इमेज 9, वॉइस, अच्छा, इमेज 9 एक्सेस नहीं करती होगी, इमेज 8 एक्सेस करती होगी, कॉपी कर देंगे, इमेज 3 से कर देते हैं, ठीक है, सो तो या वी गॉट आवर 9th इमेज, ठीक है, इमेज कार्ड हो गया। अब हमें जब कार्ड को होवर करेंगे तो हमें ट्रांजिशन चाहिए, ठीक है, तो डॉट सेगमेंट, थैंक यू भाई, ठीक है, अब डॉट कार्ड, नॉट ग्रोअर टू होवर, ठीक है, होवर में, अब अब हम होवर में प्रॉपर्टी सेट करेंगे, जब होवर करेंगे तो इसका फिल्टर ग्रे, सॉरी, फिल्टर नहीं, पहले हम स्केल सेट करेंगे, फिल्टर बाद में देखा जाएगा, ठीक है, फिल्टर के लिए हमें ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल में वी नीड टू पुट फ्री वैल्यू, लेट्स से 1.03, तो हम्म, हाँ, जब हम इसको होवर कर रहे हैं तो ये थोड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है, ये भी थोड़ी बड़ी हो रही है, ये भी थोड़ी बड़ी हो रही है, बट ये जल्दी चली जा रही है, तो उस पर हम एक ट्रांजिशन रख सकते हैं, कितने सेकंड का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन रखते हैं 0.4 सेकंड का, ठीक है, तो अब जब हम इसे होवर करेंगे तो थोड़े टाइम बाद जाएगी ये, थोड़े टाइम बाद जा रही है, ठीक है, अब हमें एक बॉक्स शेडो भी चाहिए था, तो बॉक्स शेडो के लिए 0,0,20 पिक्सल एंड हैशटैग 333 से ग्रे एक्सेस हो जाता है, बताया था मैंने पहले, ठीक है, सो ठीक है, अब हम इसको डेटा ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो में
0,0, 10 pixel, not 120 pixel, 10 pixel and hashtag 333. नाउ आई थिंक अब हमारा बॉक्स शेडो भी आ जाएगा। हाँ, बॉक्स शेडो जैसे हम उसको होवर कर रहे हैं, बॉक्स शेडो भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें जैसा प्रोजेक्ट था हमारा, हम इस पे होवर कर रहे थे तो उसका जो फिल्टर था वो बाद में आ भी जाता, फिल्टर कंजर्व हो जा रहा था बाद में। तो क्या करेंगे, डॉट कार्ड होवर में इमेज, इमेज इसमें क्या करेंगे, फिल्टर, फिल्टर में ग्रे स्केल, ग्रे स्केल, या इट्स नॉट वर्किंग, अच्छा स्पेलिंग गलत है, ग्रे स्केल और उस पर कर देंगे 0%, ठीक है। सो अच्छा इसको होवर करेंगे तो ये बड़ी भी हो रही है, शैडो भी दे रही है, ट्रांजिशन भी हो रहा है। सो आई थिंक वी आर डन विथ आवर प्रोजेक्ट। सो थैंक यू।